मुकुंद पटल व्लॉग। जय हो तेरी कृष्ण कन्हैया, मुकुंद तुम हो सबके खिवैया, देवों का देव जय गोविंदा, हरो सब दुख मुकुंदा। जय जय कृष्ण जय जय। ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ। તો જો મસ્ત સવાર થઈ ગઈ છે અને સવારના વાગી ગયા છે આજે તો 9। અને આજે આપણે જવાનું નથી વાડીએ, કારણ કે આજ ઘરે ધાણાની મોસમ પતી ગઈ અને આજે આપણે એકલા જો રિષિતાબેન ગયા કોલેજે, મુકુંદના પપ્પા ગયા વાડીએ અને આપણો હથવારો મુકુંદભાઈ નહોતો એ પહોંચી ગયા છે અમદાવાદ। તો હવે સવારનું કામ કરીને આપણે થઈ ગયા છે નવરા, કારણ કે મોડા નવરા થયા, કારણ કે જો કપડાં હતા જાજા ઓછાણ ને હતું એટલે બધું, તો હવે નવરા થઈ ગયા છે। તો હવે આ ધાણાનું થોડું કાંધું પીસું આવ્યું છે, 2 બાજકીમાં છે, તો હવે એ હમું કરવા બેસી જાય। गाइस फिर से आज हम अपनी कॉलेज पे पहुंच गए थे। सुबह टाइम नहीं मिला था व्लॉग लेने का, सुबह जब आए तब टाइम रहता ही नहीं है। तो आज अहमदाबाद आ गए, कॉलेज आ गए, कॉलेज के दिन गए तो सुबह सरप्राइजिंग मिला कि टेस्ट है डीडी सेट की। तो डीडी सेट की टेस्ट हुई, बाद में दूसरे सेशन बहुत मजा आई। आज ही आया मुकुंद और सब टेस्ट लेने चालू कर दी। एम कैट के बाद में एग्जाम एक मिनट है, टेस्ट ही चलती रही, 2 टेस्ट हुई, पूरा लेक्चर लिया ही नहीं, टेस्ट ही चली हमारे में। कैसा चला? वेलकम बैक। वेलकम बैक हो गया हमारा। हो गया। तो हमारा रोज ऐसे टेस्ट चल रहे हैं, शेड्यूल डाल दिया वैसे। मैं आया और तभी से टेस्ट चालू की है वंश। मैं वो मेरी राह देख रहे थे एकदम। देखे दोपहर के बजे है 4 और मम्मी देखो यहाँ पर कुछ धाने का काम कर रही है। धनिया है वो क्लीन करने का शायद कुछ काम है वो कर रही है मम्मी यहाँ पर। मम्मी को जीरू लेना है। ધાણા જીરું ધરાવવું નહીં, થઈ રહેવા એવું છે। તો ધાણા તો છે, આનો હાલે ખાલી ધાણા ધરાવાય? જીરું પણ જોઈ? ધાણા જીરું કે ને કે ધાણા અરે જીરું જોઈ ખબર છે, પણ મેં કીધું આમ ઘરે થાય આપણે વાવ્યું હશે, થયું હશે એમ। જીરું નથી આવ્યું, ખાલી ધાણા જ આવ્યા છે। चलिए ऐसा है तो पापा है वो जीरू लेने के लिए जा रहे हैं और खांड लेने के लिए गए पापा जयपुर। અત્યારે બપોરના છે ને 5 વાગ્યા છે ને અમારા કૃતિકાબેન જો ટીચર રમે છે। આજે ઈ શું બન્યા છો તમે? ટીચર એમ નહીં, શું નામ છે તમારું? રિષિતા। હા, ઈ રિષિતા મેમ બન્યા છે। આમ જો અમારું આઈ કાર્ડ પહેરી આવી છે અને આ એના સ્ટુડન્ટ છે, બે કોપી કરે છે મારી। આગા બે હોય પરીક્ષા લે કાગો પરીક્ષા આલે છે? હા। તો શું આપ્યું છે એક્ઝામમાં? ક્વેશ્ચન શું પૂછ્યા છે? અને ક્વેશ્ચન તો નથી પણ એ ટેબલ લખે છે। ટેબલ? હા। એક્ઝામમાં કેનો ટેબલ આપ્યો છે? અને 20 નો અને 30 નો 30 નો 20 નો આવડે છે? આને તને આવડે છે? 30 હા 12 નો 30 નો અને 40 નો આ બેન 12 નો ટેબલ લખે છે। અને તમારે? 14 50 અલા કયું છે? ઇંગ્લિશ મીડિયમ છે કે ગુજરાતી મીડિયમ છે? આ ગુજરાતી મીડિયમ ના ઇંગ્લિશ મીડિયમ। ઓકે, આ ઇંગ્લિશ મીડિયમ માં છે ને આ બેન આપણે ગુજરાતીમાં છે। મેથ નું લખે છે, સબ્જેક્ટ મેથ એવું લખ્યું છે જી। તો હા તો ઇંગ્લિશ લખના કર, રાઇટિંગ કરતા થાય ન આવડતું। આવા મેડમ તો અમે નથી થતા કૃતિકા જેવા તો। હા ચશ્મા મારા, હા કપડા મારા નો પહેરલે ભાઈ। હા તો હું આયા સુધી નો તો આવે ને ચુંદડી તો થઈ આયા સુધી નહીં થાય। હા તો થાય, તારા માટે થોડુંક નાનું સીવડાવો તો હવે તારે તને એમ લાગે છે કે મોટા થઈને તારે પ્રોફેસર બનવું હોય એવું? હા એવું જ લાગે છે। એવું જ છે, બનીશ? હા છોકરાઓ તારું માનશે? હા मानसे? हाँ मानसे। फाइनली देखो ये सब चल रहा है। मम्मी देखो कृतिका को यहाँ पर है ना प्रोफेसर बनने का ऐसा है। બનશે તો મને તો એવું નહોતું તોય હું બની ગઈ। મને તો એવું કઈ હતું જ નહીં કે આપણે નાની હતી તે એમ કેતી કે હવે કઈ તાર જેમ વાડીએ નહીં જાય, આપણે આખો દી કોણ તડકો સહન કરે, તડકો હોય કેવી ગરમી થતી હોય ને પંખાય છે, એસી બેઠા બેઠા કઈક નોકરી લઈ। મેં કીધું એમ નોકરી રેઠી પડી એટલે તમે આપી દો। હા તો કૃતિકા અટાણે એમ કે છે કે હું પ્રોફેસર બને તો એ બનશે ખરી। हाँ कुछ બને ખરા, कुछ ना कुछ काम तो किसी को करना ही पड़ेगा, लेकिन वरना है ना किसी का खतरा पूरा होने वाला नहीं है, ऐसे जिंदगी चलने वाला नहीं है। हाँ खेती तो कोई ने करवी નથી। હા બધાને આસાન કામ જોઈએ છે, કોઈને હેરાન થવું હોય ને એવું કામ ન કરવું। જો આ કુવાર કેવા થાય, જો કેવા કુવાર થાય, એક દી 12 વાગ્યા સુધી થ્રેસર રાખ્યું રાતના
અને એક દી બીજે દી 11 વાગ્યા સુધી થ્રેસર રાખ્યું તો આ કામ પૈતું અને હજી જો આ હવારના આમાં મથી છે આ જો આ બધી ક્વોલિટી કરવાની જો કેટલી ક્વોલિટી કરે છે મમ્મી. એક, બે, ક્વોલિટી ત્રણ, ચાર. જો મમ્મીની ક્વોલિટી. આ એક ચોખ્ખું થયું હજી આમાં કાકરા કાઢવાના હજી આમાં ધાણા કાઢવાના અને આ ઝીણામાંથી કુસો કાઢવાનો હજી આ છે. હા એટલું રહ્યું છે હવે આ હમ. કઈ એમનું હેલું તો નથી ખેતી કામ મળે એમ કે ખેતી બધા હાલે ખેતીમાં અમુક મગજ વહી જ હાલે મગજ બધા હાલે. અને ખેતીમાં બધે હાલવાના જ નથી. પરમદી છે ને મમ્મી મને કે હાલ ચા દેવા જાઓ. એટલે હું તો મમ્મીને ખાલી મૂકવા ગઈ હતી. પપ્પા એવા તડકામ કામ કરતા હતા ને હું 5 મિનિટ બેઠી કુંડીએ અને કુંડીએથી બેહીને 5 મિનિટ પછી ઘરે. એવો તડકો હતો વાત પૂછો મને. એમાં પપ્પા કામ કરતા હતા. તાર પપ્પા તો ખબર નતું વહી ગઈ કે લે રિષિતા ક્યાં મેં વહી ગઈ કે વહી ગઈ પછી થોડી તડકામ ખેતરમાં આવે मॉर्निंग जय श्री कृष्णा। तो बढ़िया सी मॉर्निंग हो गई है और मुकुंद के पापा चले गए तुअर वाले चाय पानी पी के खेत पे मजूर को लेकर, क्योंकि तुअर वाला खेत में तुअर इकट्ठी करनी है। एम 6 गुंगण तो पाथरी दीधा, हजी घट्યું तो जो लेवा एवा तो लई जाय छे मजूर ने लई 6 पाथरा अने हाथमो हवे लई गया એટલે ત્યાં ભેગી થાય છે તે પછી આપણું થ્રેસર હાલશે લગભગ આજ ભેગી થઈ જાય એટલે કાલ કે પ્રમ દિવસે થ્રેસર હાલશે। તો આપણે સવારનું કામ થોડુંક પતાવી દીધું છે, વાસણ કપડા જે આપણા બાકી છે। રિષિતાબેન ગયા કોલેજે અને જો આ જીરું કાંઈ લાવ્યું છે ધાણા જીરું દરાવવા માટે લઈ આવ્યા તો આપણે એ હમું કરવાનું છે। ખાંડનો કટોય આવી ગયો છે તો ખાંડનો કટોય જે આપણે ઠેકાણા કરીને કેરબો ભરવાનો છે। તો ચાલો હવારનું કામ પેલા નિપટાવી લઈએ। આજે છે આપણે AI પાવર્ડ ગ્રાફિક ડિઝાઇન ધ ફ્યુચર ઓફ ક્રિએટિવિટી। મોહિત રાજપૂત છે જે બોલિવૂડના મૂવી પોસ્ટર છે ડિઝાઇન કરે છે, આવવાના છે। જો અહીંયા આપણા ફેકલ્ટી અને સ્ટુડન્ટ બેઠા છે ત્યાંથી હાઈ કરે છે। એનું ઓર્ગેનાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું છે। સ્ટુડન્ટ જોવો મોટી સંખ્યામાં બધા આપણે છે ને સમાતા નથી કે BCA ની સ્ટ્રેન્થ જ એવડી છે ને કે સમાતા નથી, ફૂલે ફૂલ થઈ ગયું છે બધું। સર એમ કે છે કઈ નીચે બેસાડો, હવે એવું જ કરવું જોશે। કેમ સ્માઈલ કરો છો? આ છે એ સ્પીચ રેડી કરીને આવ્યા છે, અહીંયા કઈક સ્પીચ આપવાના છે। શેની છે? વેલકમ સ્પીચ હશે ને? એન્કરિંગ કરવાના છે, બરોબર છે। સ્પીચ સોરી મને ભૂલાઈ ગયું। ભાવિન સરે જો આપણે આવી ગયા છે, મ્યુઝિક સ્ટાર્ટ થઈ ગયું। હા ચાલુ થાય ને વેઇટ કરે છે। BCA ની સ્ટ્રેન્થ જ એટલી છે ને કે સ્ટુડન્ટ છે ને હમાતા નથી, ફૂલે ફૂલ થઈ ગયું। નીચે બેસવામાં કોઈ માનતું નથી, એ તો બરોબર છે, નીચે તો ન બેસાડી શકી, કેટલું ફૂલ થઈ ગયું। जो हमारे स्पीकर आए हैं ना मोहित राजपूत, उन्होंने कई सारी जो बॉलीवुड मूवी है जैसे कि KGF है, पंचायत है, स्कैम 1992 है, मिर्जापुर है, द फैमिली मैन है, पाताल लोक है, उनके जो पोस्टर होते हैं बॉलीवुड मूवी के जो पोस्टर होते हैं वो इन्होंने डिजाइन किए हैं। तो थोड़ी देर में हम उनसे मिलेंगे अभी। તો બપોરના વાગ્યા છે 11:30। તો જો સવારનું કામ આપણે બધું નિપટાવી ખાંડનો કટો કરી દીધો ખાલી, 2 ડબરા અને એક ડોલ ભરી લીધી, કારણ કે આપણે ભાઈ કેરબો ખાલી નથી। કેરબામાં એકમાં ભર્યા આપણે પાપડ અને બીજામાં ભર્યા વેફર ભરી છે, એટલે 2 કેરબા હતા, 2 ભરી દીધા છે એટલે ડબરા ભર્યા। અને જો આપણે જીરું કાલે લાવ્યું હતું તો એ સાફ કરી નાખ્યું, તડકે તપવા રાખી દીધું, કારણ કે તડકે તપવવું પડે દરાવવું હોય એટલે ઝીણું દરાય। અને થોડોક ફોદીનો આવ્યો તો એ તપવા રાખી દીધો સ્ટોર કરવા માટે, છાશના મસાલા માટે। અને એક પપૈયું પડ્યું હતું તો પપૈયું સુધારી લીધું। અને હવે દરવાનો છે આપણે બાજરો, કારણ કે બાજરાના રોટલા અને અડદની દાળ આજે બનાવવાની છે। તો આ બધું પેલા હકેલી લઈ પછી બાજરો દળીને બનાવી રોટલા અને અડદની દાળ। Graphic designing means there are many AI tools used nowadays. We all use AI tools, our favorite ChatGPT, right? But it's not all about AI. So there are many different AI tools that are used in the field of graphic designing. And now how we will know about that? So this sir will come here and guide us about that. So we will pay attention to him when he will come. We will pay attention to him, and whenever you have some questions, wait until he completes. Then you can ask him questions also. So this is what is going to happen here. So you should know that before. આપણે કંઈક રીલ શૂટનું કામ હાલે છે, 55+ પ્રોજેક્ટમાં કામ કર્યું છે। જો આપણે છે ને આની ઉપરથી ખબર પડી, બાકી આપને કઈ ખબર નથી। देखिए हमारे गेस्ट है वो आ गए हैं और सारे स्टूडेंट है वो खड़े हो गए हैं उनके लिए। Good morning to all respected dignitaries.
Dean Professor Paresh Vora sir, faculty members, and my dear students. It gives me an immense pleasure to welcome our distinguished guest today. I am Bhavin Mehta. With more than 55 official design credits, his remarkable portfolio includes popular titles such as Panchayat, Kashkari, Mumbai Saga, Mirzapur, Scam 1992, The Family Man, and Patal Law. He has trained over 3,600 students, helping them learning industry standard skills in Photoshop, video editing, cinematic color grading, and AI design workflows. His journey from a rising designer to a highly respected industry expert is truly inspiring for the students who aspire to build a creative career. प्रिफरेबल रहेगा कि गुजराती में कंटिन्यू करना है? हाँ या ना? हाँ। देखो गुजराती क्या मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए मैं हिंदी में थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं गुजरात से ही हूँ, है ना? मैं गुजरात सूरत से ही हूँ, बट मेरा जो जर्नी है वो सूरत और सूरत से ज्यादा मुंबई में रह चुका हूँ मैं। 10 से भी ज्यादा साल का मेरा मतलब मुंबई में एक्सपीरियंस रह चुका है। सबसे पहले मैं आप सभी को किसी भी चीज के लिए डिस्क्राइब करना या डिस्कशन करना स्टार्ट करूं आप सभी से, पहले तो मैं आपकी इंस्टीट्यूट जो है मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया है, तो उसके लिए तो मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत सही मैनेजमेंट से लेकर काफी चीजें बहुत ज्यादा सही की गई है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड आप सभी से मैं भी मिलने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस था और मैं भी चाह रहा था कि मैं आप सभी से इंटरेक्ट करूं, है ना? देखो मैं यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट मैं कोई आपसे मोटिवेशनल स्पीच मतलब डिस्कस करने नहीं आया हूँ। मैं भी आप ही के बीच से आया हुआ एक स्टूडेंट हूँ, है ना? तो हमारी लाइफ में हमारे स्कूल में जब भी मोटिवेशनल स्पीच होती है तो हम लोग थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, है ना? मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आप सभी को जितना इन डेप्थ शेयर करूंगा, कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, कहाँ मैं हूँ और ये सब प्रोजेक्ट्स मैंने किए कहाँ से, है ना? तो ये सब मैं इन डेप्थ आपको बताऊंगा, जिससे क्या है कि इसके बाद लाइफ में कभी भी आप किसी भी फील्ड में हो, ऐसा नहीं मेरी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, आपको एटलीस्ट ये पता लगेगा कि मुंबई है या बॉलीवुड इंडस्ट्री है या साउथ इंडस्ट्री है, उससे कनेक्ट कैसे होना है। करेक्ट है? मैं चाहता हूं कि हमारा जो सेशन अभी चलेगा उस पर आप सभी जितना ध्यान देके उस चीजों को समझोगे, जानोगे और मुझसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर करोगे, मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट मतलब जो मेरी लाइफ रही है, मैं सेकंड लास्ट बेंचर था और मेरी जर्नी वहां से शुरुआत हुई है। तो अभी जो भी लास्ट या सेकंड लास्ट वाले होंगे बड़े खुश हो गए। रेड एंड वाइट इंस्टीट्यूट के साथ मैं कनेक्टेड हूँ 2022 से, और रेड एंड वाइट इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड इन द सेंस की मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ, मेरा एक्चुअली जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो मुंबई में होता है, बट रेड एंड वाइट के माइंड में एक इनिशिएटिव चल रहा था कि हम गुजरात के जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी एक गुजरात से ही मतलब आगे बढ़े हो, तो हम चाहते हैं कि गुजरात के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आपका जर्नी से लेके एवरीथिंग पता लगे और उनको ये पता लगे कि बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्रीज है जो हायर करना चाहिए, वीडियो एडिटर्स हो या ग्राफिक डिजाइनर हो, मूवी पोस्टर डिजाइनर हो, राइट, जो भी मल्टीमीडिया सेक्टर की बात होगी। तो 2022 से बस ऐसे कनेक्शन हुआ था। रेड एंड वाइट इंस्टीट्यूट ने मुझे डिस्क्राइब किया कि हम मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में आपको ले जाना चाहते हैं कि जहां से उन स्टूडेंट्स को पता चले कि हम भी सिर्फ गुजरात नहीं, गुजरात के बाहर भी बहुत सी चीजें हैं जो जहां हम पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आया हूँ तो टू बी ऑनेस्ट रेड एंड वाइट के ही वजह से मैं आपको यहाँ आज मिल पा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ जो रेड एंड वाइट के फाउंडर है उन्होंने मुझे कहा था कि मोहित मैं खुद आऊंगा आपके सेशन में आपके साथ, और हम इस सेशन को हो सके उतना स्टूडेंट तक क्वालिटी से लेके जितना भी पावरफुल नॉलेज है वो सब सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले तो रेड एंड वाइट के फाउंडर हसमुख भाई के लिए बहुत ज्यादा दिल से तालियां हो जाए। राइट, अब हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको ना बहुत फ्रेंडली बताता हूँ, मेरी जितनी भी जर्नी रही है, जैसे मैं सूरत गुजरात से हूँ, राइट। मेरे मदर फादर जो है उनका उतना बैकग्राउंड मेरे मदर फादर का पावरफुल था नहीं, है ना। मेरे फादर वॉचमैन थे, तो उन्होंने 17 साल वॉचमैन ही किए, तो मेरा इतना कोई फाइनेंशियल स्टेबल बैकग्राउंड था ही नहीं पहले से, और मैं स्टडी में भी एवरेज स्टूडेंट ही था। तो स्टडी का क्या एक मेरा कि पता ही था कि मैं स्टडी नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो मैंने मेरे फादर मदर को बोल दिया था कि मैं इतना मतलब पावरफुल स्टूडेंट नहीं हूँ, एंड आई थिंक मैं बना हूँ सिर्फ मुंबई या बॉलीवुड के किसी काम के लिए। तो उन्होंने इतना है कि मेरी हिम्मत नहीं तोड़ी थी, राइट। मदर फादर ने कहा था कि
आप जो भी कुछ करना चाहते हो आप ट्राई करो, बट पढ़ लो ऐसे करके, राइट। अब मुझे क्या है ना कि 12th में मैं एक सब्जेक्ट में मतलब फेल भी हो गया था, तो मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ था। मेरा ये था कि भाई मेरा ये प्लान है नहीं, मुझे तो बस मूवी पोस्टर डिजाइनिंग या बॉलीवुड की फील्ड में जाना है। और धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस वगैरह स्टार्ट की, क्योंकि मेरे जो जीजू है तो वो फोटोशॉप मतलब उनका बेसिक वर्क था, वो फोटोग्राफर है। तो जीजू ने वहां से मुझे डिस्क्राइब करना चालू किया कि भाई आप फोटोशॉप की लाइन में कंटिन्यू कीजिए, आपको कुछ अगर क्यूरियोसिटी है तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। किसी पोस्टर है वो बना के दे दिया, तो जर्नी मेरी वहीं से स्टार्ट हुई थी, राइट। उसमें जो भी 200-500 रुपए मिल गए तो मिल जाते थे। और उस बीच मेरी लाइफ में ना मेरे साथ फाइनेंस को लेके एक बहुत क्रेजी मोमेंट हो गया था, आप सभी को बड़ा मजा आएगा। मैं ना ऐसे वीडियो मतलब फोटो एडिटिंग करना चाह रहा था, और मेरे पे ना एक कॉल आया। आप में से जितने भी लोग सूरत को जानते हो, तो सूरत में एक एरिया है वराछा करके, है ना। तो उन्होंने क्या बोला मुझे कॉल करके कि क्वांटिटी में फोटोग्राफ्स है, आप एडिट करोगे? मैं कहा ठीक है कर लेंगे, राइट। सो उन्होंने बोला कितने रुपए आप लोगे? तो मैंने कहा मैं पर फोटो 100 रुपीज लूंगा ऐसा। तो उन्होंने गुजराती में बोला कि अरे भाई यहाँ तो 25-25 रुपया मैं तो स्टेशन पर कर यहाँ पे ऐसे करके। सो मैंने कहा नहीं नहीं मैं वो नहीं करूंगा ऐसे करके, राइट। तो ये मेरी क्वालिटी मैंने पहले से सोच के रखी थी कि मैं कभी भी नहीं करूंगा। तो धीरे धीरे मुझे बिजनेस समझ में आ रहा था कि मेरा जो काम है ना वो यहाँ नहीं चलेगा, है ना, मुझे कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उन दिनों मुझे मूवी पोस्टर डिजाइनिंग से लेके काफी चीजें सीखनी थी। मैं गुजरात की इतनी इंस्टीट्यूट से लेके काफी चीजें मैंने सर्च की, मुझे कहीं पे ना एक पर्टिकुलर ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं मिली कि जहां से मैं कुछ गैदर कर पाऊं या मैं कुछ गेन कर पाऊं। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाता हूं, अगर मुझे सीखना है तो अगर किसी को फिल्म मेकिंग या डायरेक्शन भी सीखना है ना, तो वो उस डायरेक्टर के पास से सीखेगा ना जिसने फिल्म के काम किए, एक्चुअली, है कि नहीं। अगर आपको मूवी बनाना सीखना है तो किसी स्कैम 92 या मिर्जापुर किसी भी फिल्म के आप डायरेक्टर के पास से जाके सीखोगे। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है। तो वैसे ही मैं भी चाहता था कि मैं भी मूवी पोस्टर डिजाइनिंग वहां से सीखूं जहां वो जो मेंटर है उन्होंने कुछ किया हो, है ना। तो मैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में गया, बट मुझे वैसे कोई मेंटर दिखे नहीं, राइट। फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा मुझे गुजरात छोड़ के मुंबई जाना पड़ेगा। अब मुंबई में भी मेरा कोई ऐसा पावरफुल था नहीं, फर्स्ट डे था मेरा, और मैं बस घर से 500 रुपए लेके मैं मुंबई गया था। और मैं सोच रहा था कि कहाँ जाऊंगा, किस तरीके से मिलूंगा। और देखो सेलिब्रिटीज से कैसे कनेक्ट किया जाता है, मैं आपको बहुत रॉ लेवल पे समझा रहा हूँ। मतलब ये समझो कि मैं मेरी लाइफ की जो यूएसपी है ना, मैं आपसे वही शेयर कर रहा हूँ। और किस तरीके से एक बेसिक सूरत से आया हुआ लड़का किस तरीके से सेलिब्रिटीज तक पहुंच सकता है, किस तरीके से आप भी उनसे कनेक्ट हो सकते हो। आप में से काफी लोगों ने सेलिब्रिटीज को मैसेज भी किए होंगे व्हाट्सएप पे, सॉरी इंस्टा पे, बट कभी वो कनेक्ट नहीं होते, राइट। मैंने सेलिब्रिटीज को काफी मैसेजेस किए थे, और मैं किस तरीके से कनेक्ट हो पाया मैं आप सभी को समझाता हूँ। सी मेरा ये काम था कि 18 तक मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली थी। मतलब मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी कि मैं बहुत ज्यादा प्रो लेवल पे पहुंच चुका था। अगर मुझे किसी ने पोस्टर दिया है ना, मतलब ये समझो कि मैं उसको आधे घंटे में कंप्लीट कर दूंगा, राइट। तो ये था मेरी कंसिस्टेंसी, मेरा नॉलेज, और मैंने खुद को टाइम दिया। कई लोग क्या करते हैं ना, सीखते हैं और सीखने के बाद बस 1 या 2 महीने में एक्सपेक्ट करते हैं हम इस लेवल पे पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता, एक प्रैक्टिस लगती है ना। प्रैक्टिस में आपको खुद को ढालना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स को समझना पड़ता है, और वहां जाके चीजें आपसे कनेक्ट होती है, राइट। मैं मुंबई गया, मुंबई में पहला दिन था मेरा, तो लोकल ट्रेन थी, मतलब तो वहां पे ना एक बंदा था, पसीने से बेहाल हो रहा था। तो मेरे पास माउंटेन ड्यू थी, तो देखो माउंटेन ड्यू कितना काम करती है। मैं खड़ा था मैंने बोला कि क्या भाई आप मतलब परेशान हो रहे हो, आपको कुछ ठंडा वंडा पीना है क्या? गर्मी का माहौल था मतलब। कहता हाँ जी दे दीजिए ऐसा। तो मेरे पास 2 माउंटेन थी, मैंने उसको 1 दी, है ना। अब वो 10 मिनट 15 मिनट बाद बोला भाई आप कहाँ रहते हो और कहाँ से मतलब आए हो ऐसा। मैं कहा भाई मैं सूरत से आया हूँ, मैंने मुंबई देखा भी नहीं, मैं पहली बार मेरी लाइफ में आ रहा हूँ और मुझे मुंबई सेंट्रल जाना है ऐसे करके। उसने बोला तो यहाँ पे आप क्या करोगे मतलब आके ऐसा। मैंने कहा मुझे ना फिल्मों के काम करना है, और मैं चाहता हूँ कि काफी मल्टीपल डायरेक्टर और इनकी सबकी ऑफिस में मैं जाऊं और उनसे कनेक्ट हूं, और उनको मैं शोकेस करूं कि मेरा प्रोजेक्ट क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा, और मैं इनको बेस्ट लेवल पे आउटपुट दे सकता हूँ मूवी पोस्टर डिजाइनिंग रिलेटेड। उसने बोला ठीक है, आप जहां जहां जाना चाहते हो आप जाके आओ, है ना, और आप शाम को मुझे मिलो। मैं कहा मतलब किस पर्पज से मैं आपसे मिलूं, मुझे थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए ऐसा। उसने बोला कि आप मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं। कहता है पीयूष घाटगे आपको नाम पता है? मैंने कहा नहीं। कहता है साहिल खान नाम पता है? आपको पता होगा शायद तक, पता है? इंडिया का फिटनेस एंड यूथ आइकन है, आप सर्च कीजिएगा, 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर है, और फिटनेस ओरिएंटेड, मतलब मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा आप लोगों को नहीं पता है। तो साहिल खान जो है
वो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ की नेटवर्थ लेके बैठे हुए पर्सन है, और उनका इंस्टाग्राम आप चेक करोगे तो ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने मार्केटिंग उन लोगों को सिखाया कि आम जनता भी खुद को मार्केटिंग करके एक लेवल पे स्टैब्लिश कर सकती है, राइट। तो कभी सर्च करना साहिल खान कौन है ना। सो साहिल खान के वो थे पीए, और वही उनका शूट्स वगैरह भी करता है पीयूष घाट के, राइट। उन्होंने बोला तो मेरा काम जो है साहिल खान के साथ है, तो आप जितने भी डायरेक्टर के ऑफिस में जाना चाहते हो आप जाके आइए। जाने के बाद शाम को अंधेरी वेस्ट पे मुझे अंधेरी वेस्ट पे एक क्या कहते हैं स्टार बक्स है, वहां पे आके मुझे मिलिए, मैं आपसे वहीं पे मिलूंगा। मैं शाम को मैं पूरा दिन मीट ब्रदर्स, आपको पता होगा बेबी डॉल गाना तो सुना होगा आपने, वो भी नहीं सुना? हाँ, अब वो सुना है, देखा। तो बेबी डॉल जो गाना है ना, उसके जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनका नाम है मीट ब्रदर्स। मैंने सबसे पहले इन्फिनिटी मॉल तरफ उनका ऑफिस है, मैं वहां पे गया था, फिर और भी कई मतलब मल्टीपल ऑफिस है, मैं सब जगह गया, मैंने सब जगह जाके ट्राई किया कि मतलब किसी के यहाँ पे मतलब मैं शोकेस करूं मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो क्या हो रहा था पता है, वहां से ना मैं जान रहा था कि किस तरीके से डील की जाती है, किस तरीके से बातें की जाती है, किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। मैं 3-4 घंटे तक सबके ऑफिस में बैठा रहा, बट मेरा कुछ काम निकल नहीं पा रहा था, राइट। शाम को परेशान होकर मैं, उसने जो मुझे प्लेस बताई थी मैं वहां पे गया। वहां पे जाके मैंने उससे डिस्कशन किया कि भाई इस तरीके से मैं गया था, आप बताओ भी। वो कहता है कि आपने मुझे माउंटेन पिलाई थी, आओ मैं आपका साहिल खान के यहाँ ले जाता हूँ। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। वो बंदा सीधा मुझे साहिल खान के पास ले गया, हम लोग उसके जो सोसाइटी में है वहां पे मिले। उन्होंने मुझे बोला कि भाई आपका काम वगैरह एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे देख लेता हूँ, अगर आप उस लायक हो तो देन डेफिनेटली हम काम करेंगे, राइट। और जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। अब क्या है कि मैं डेली जितने भी उस टाइम 2018 के आसपास साहिल खान के जितने भी डेली फोटोग्राफ्स अपडेट हुए हैं, आप उसकी प्रोफाइल स्क्रॉल करके देखना, सब में नीचे लिखा होगा मोहित राजपूत, एडिट बाय मोहित राजपूत, एडिट बाय मोहित राजपूत, राइट। तो ये मैं उसके फोटोग्राफ्स एडिट कर रहा था। अब आप सभी के माइंड में आया होगा कि मैंने उससे चार्ज कितना लिया होगा, राइट, क्योंकि सबके रॉ क्वेश्चंस होता है। और इससे पहले मैंने जितने भी सेमिनार किए हैं ना, सबने बहुत रॉ लेवल पे मेरे साथ क्वेश्चंस किए, तो मैं चाहूंगा कि इससे बाद आप भी करो, राइट। अब जैसे फाइनेंस की अपन डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला आप कितने रुपए लोगे पर फोटोग्राफ, ऐसा। अब क्या, मैं सूरत से आया हुआ बंदा, मुझे पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि 100-150 रुपए में मतलब ठीक है ऐसा करके। मैं कहा आप जो भी आपको ओके लगे आप बता देना, जो भी 100 रुपए या 120 रुपए, मैंने 150 तक नहीं बोला था, राइट। उन्होंने बोला अरे आप पागल हो क्या, ऐसे थोड़ी ना मतलब डील की जाती है। आप मुंबई में बोलो मैं पर फोटोग्राफ 1000 रुपीज लूंगा, आपको वो भी देंगे। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ आपसे, राइट। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं कहा 1000 रुपीज तक मिलता है? कहता आई विल पे यू 800 रुपीज। सामने से उसने मुझे कहा, कहता है कि आपका काम बहुत अच्छा है और आप आपके काम की और आपके स्टेटस की रिस्पेक्ट करो तो ही आपको पैसा मिलेगा, राइट। तो ये सब बहुत नेक्स्ट लेवल जितने मेरे साथ सिनेरियो हुए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आपको कल को काम लगेंगे, राइट। वहां से चीजें कनेक्टेड हुई, मैंने साहिल खान का काम करना स्टार्ट किया। फिर डिवाइन जो सिंगर है वो भी तो पता होगा आपको, डिवाइन पता है ना, लड़कों का बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन होगा उससे, राइट। सो डिवाइन के साथ मैंने काम किया, एमी पे बंटाई वो जो सिंगर ही है उसके साथ भी मैंने काम किया। उसके अलावा ये जितने भी है ना, ये सिंगर लाइन की लॉबी थी, राइट। अब ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था, मुझे काम करना था मूवीज का, राइट। 18 से लेके 20 तक मैंने सिर्फ सेलिब्रिटीज के काम किए, उसमें उर्वशी राउतेला हो या फिर काफी ऐसे सीरियल रिलेटेड डांस इंडिया डांस अगर आप लोगों ने देखा हो तो फैजल खान करके था। फैजल खान जो है उसने डांस इंडिया डांस जीता था, मैंने फैजल के भी काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए थे, राइट। तो इन सब के साथ मैं कनेक्ट हो गया था, इन सब के मैं काम कर रहा था। धीरे धीरे मैं मुझे चीजें समझ में आती गई और मुझे मेरा विजन क्लियर था कि मुझे मूवीज के काम करना है। अब मैं मुंबई की इतनी सारी एजेंसी से लेके सबसे मैंने कनेक्ट किया कि आप मैं मूवीज के प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूं, आप मुझसे मतलब 2-3 प्रोजेक्ट दीजिए, मैं कुछ नेक्स्ट लेवल चीजें करके दिखाता हूं। तब मुझे पता चला कि एजेंसीज होती है मुंबई में, आपको इंडिविजुअली कभी प्रोजेक्ट नहीं मिल सकते, राइट। तो एजेंसीज होती है, वो डिसाइड कर दी कि आपका काम कितना अच्छा है, और अगर आपका काम अच्छा भी है तो आपको एजेंसीज के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और वही आपको प्रोजेक्ट्स देंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? आवाज कम आ रही है, नोबल वालों में पावर तो है। सो क्या है कि वहां से चीजें कनेक्ट हुई और मैंने स्टार्ट किया। और जैसे ही ये जो बेसिक सा जर्नी है ना, उस जर्नी के दौरान मैंने मल्टीपल एजेंसीज के साथ बातें करने की कोशिश की। एजेंसीज ने बोला आई विल पे यू, हम आपको पे करेंगे, बट उसके आपको नाम नहीं मिल पाएगा, राइट। हम आपको मेंशन नहीं करेंगे, आपको जो भी पेमेंट है आपको हम कर देंगे क्योंकि आपकी स्किल अच्छी है। अब मुझे पेमेंट बाद में, मुझे पहले मेरा नाम चाहिए था,
राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं किसी फिल्म के लिए काम कर रहा हूं और मेरा नाम ही नहीं आ रहा है, देन इसका कोई मीनिंग ही नहीं, राइट। फिर मैंने स्टार्ट किया कि कोई नहीं, हम एजेंसीज के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, हम इंडिविजुअली काम करेंगे। अब देखो कहां से नेटवर्किंग स्टार्ट होता है ना, आपको समझाता हूं। लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, मैं घर पे बैठा था, मेरे जो फादर है वो सडनली उन्होंने डिस्क्राइब किया कि एक मूवी आ रही है पंचायत करके, वो गांव के ऊपर बनी है, तो मैं चाह रहा हूं कि वो मूवी मैं देखूंगा, तो तू अमेजॉन प्राइम है वो करवा देना सब्सक्रिप्शन काइंड ऑफ। मैं कहा ठीक है। तो सडनली मैंने सोचा क्यों ना, ये फिल्म आ रही है तो इसकी स्टार कास्ट का मीनिंग क्या होता है आप लोगों को अगर नहीं भी बताओ तो मैं बताता हूँ। जितने भी फिल्म में काम करते हैं ना, एक्टर से लेके जितनी भी टीम होती है उसको स्टार कास्ट कहा जाता है, राइट। तो मैंने क्या काम किया, वहां से गूगल में सर्च किया कि इस फिल्म में किन किन लोगों ने काम किया है, राइट। वहां से मैंने लिस्ट बनाई पूरी, और मैं सुबह से लेके शाम तक इंस्टाग्राम पे उनको मैसेज करता था कि हेलो, मतलब उनको मैं बोलता था कि हेलो आई एम फ्रॉम सूरत एंड मैं मेरा ये बेसिक मतलब मूवी पोस्टर डिजाइनिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट है, आपकी अपकमिंग फिल्म आ रही है, मैं चाहता हूं आपकी फिल्म के लिए मैं कुछ नेक्स्ट लेवल पोस्टर डिजाइन करके आपको दूं जो बिग लेवल पे प्रमोट हो सके, राइट। अब यहाँ पे ना मैंने एक माइनस पॉइंट पकड़ा था, क्यों मैं ये चीजें कनेक्ट कर पाया मैं आपको वो समझाता हूँ। लोग क्या काम करते हैं, सेलिब्रिटीज को हाई लिख देते हैं। कभी भी ऐसा मत करो, हाई को आपको कोई हाई लिखता है आप नहीं रिप्लाई करते तो सेलिब्रिटी क्यों करेगा, है कि नहीं। तो पर्पस लिखो पूरा। तो मैंने ना उनको सबको हाई के साथ मेरा पर्पस लिखता था कि मैंने आपको इस पर्पस से मैसेज किया है, और मैं चाहता हूं कि आपका अपकमिंग अगर फिल्म आ रहा है और मैं अगर आपको मूवी पोस्टर डिजाइन करके दूं तो वो पोस्टर आपको मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं, राइट। उसमें से काफी सेलिब्रिटीज है, सुबह से लेके लॉकडाउन में समझो शाम तक मैं 60 या 70 जितने सेलिब्रिटीज को सेम मैसेज भेजता था कॉपी करके, राइट। मुझे ये था कि कोई एक या दो तो मुझे रिप्लाई करेंगे, है ना। उसमें से पंचायत की जो एक्टर है ना, आसिफ खान नाम है उनका, आसिफ खान ने मुझे रिप्लाई किया और उसने मुझे बोला कि हे बडी यू आर डूइंग सच एन अमेजिंग वर्क, और आप अब तक कहाँ थे, मतलब हम स्टार्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, आप ये मेरा नंबर है, रात को मैं आपको कॉल करूंगा 8 बजे आसपास, आपकी अवेलेबिलिटी रखना। और यहां से मेरी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट स्टार्ट हुआ, राइट। पंचायत का प्रोजेक्ट इस तरीके से आया था कि पंचायत में ये पॉलिटिक्स किया गया था कि लीड एक्टर जो है ना उसका ही पोस्टर उन्होंने नहीं बनाया था, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर सलमान खान है, सलमान खान की मूवी है रेस 3 मूवी में अगर आप चेक करोगे तो बहुत से लोग हैं उस मूवी में, पर पोस्टर किसका है, सिर्फ सलमान खान का, है कि नहीं। तो वो जो साइड के एक्टर्स है वो भी तो एक्टर ही है कि नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम उनके ऊपर फोकस करें, साइड एक्टर्स के ऊपर, राइट। साइड एक्टर्स को सबको मैंने मैसेजेस किया, चाहे वो कमांडो 2 फिल्म हो, तानाजी फिल्म हो, कोई भी फिल्म हो, मतलब इनके जितने भी साइड एक्टर होते थे मैं सबको मैसेज करता था। ये सबने मुझे रिप्लाई देना स्टार्ट किया। इन्होंने मुझे रिप्लाई क्यों दिया, क्योंकि इनको वो माइनस पॉइंट समझ में आ रहा था जो मैं देख रहा था, राइट, पहले से। और जो वो लोग भी बेचारे फील कर रहे थे, उन्होंने बोला कि हम प्रोडक्शन से बात करेंगे, आप हमारा पोस्टर डिजाइन करना स्टार्ट करो। तो इस तरीके से मेरे पास पंचायत का प्रोजेक्ट आया, जो प्रोजेक्ट का मुझे पैसा मिला ही नहीं था, राइट। उन्होंने मुझे क्या बोला कि मैं आपको प्रोडक्शन से बात करके पूरा का पूरा डेटा भिजवाता हूं, आप मेरे लिए पोस्टर बनाएंगे और आप इतने बेस्ट पोस्टर बनाएंगे कि हम इसको बहुत वाइड लेवल पे प्रमोट कर सके। और मेरा विजन क्या था मैं आपको समझाता हूँ। मेरा विजन ये था कि जितने भी अच्छे अच्छे मूवीज के प्रोजेक्ट है मैं उसको फ्री में पहले कर देता हूं, राइट। अगर मैं फ्री में करूंगा ना तो काफी लोगों को पता लगेगा कि मैं किस लेवल का आउटपुट दे सकता हूं। इसके बाद अगर मेरे पास खुद चल के अगर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो मैं उनको बोलूंगा ना कि मैं इतना चार्ज करूंगा। समझ में आया ना आप सभी को, यस। सो वहां से पंचायत मिला मुझे, पंचायत में मुझे कोई पेमेंट नहीं मिला था। पंचायत के मैंने कम से कम 22 पोस्टर डिजाइन किए थे, और उस पोस्टर के कमेंट सेक्शन आप चेक करना, मेरा मोहित राजपूत मैक्स करके इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप जितना स्क्रॉल करोगे जितने भी मूवीज के पोस्टर्स है ना वो मैंने रीशेयर किए, मैंने खुद अपलोड नहीं किए। ऑलवेज चेक करना, जितने भी पोस्टर है मैंने रीशेयर किया है, मैंने खुद से पोस्ट आउट नहीं किया है, राइट। सो वो रीशेयर करने के पीछे रीजन ये है कि ऑलवेज जो क्राउड मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है उन सभी को क्लियर रहे कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स है ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स है, राइट है। और जिससे हो ये रहा था कि जैसे ही मैंने ये पंचायत वाला काम स्टार्ट किया ना तो डायरेक्टर की कमेंट है उसके अंदर कि ब्रदर वेयर यू आर व्हेन वी एक्चुअली नीड अ मूवी पोस्टर डिजाइनर, और क्या लेवल का मूवी पोस्टर आपने बनाया है, तो आप मुझे ईमेल में ये मूवी पोस्टर भेजिए और मैं आपको जो इसका ऑफिशियल बेसिक प्राइस होगा मैं आपको पे आउट करूंगा। और बेसिक प्राइस भी उसने मुझे 20,000 रुपए प्रोवाइड किए थे, समझ रहे हो, एक पोस्टर का।
सो यहाँ से मुझे समझ में आया कि कितना चार्ज लेना चाहिए और किस तरीके से चीजें चलती है। सो ये था पंचायत। अब वो कितना काम लगा मैं आपको समझाता हूँ। पंचायत से मुझे मिर्जापुर, पाताल लोक, स्कैम 92, अब ये जितनी भी पूरी लाइन है ना, इसमें सब आपको सिमिलर ही एक्टर मिलेंगे, राइट। द फैमिली मैन सीजन 2 की अगर मैं बात करूं, अब जो स्कैम 92 का मैंने जो काम किया है ना, उसमें शारी भासमी करके है। शायद आप लोगों ने द फैमिली मैन देखा होगा ना, उसमें जेके पता है आप लोगों को? यस, तो जेके को मैंने मैसेज किया था। अब वो जेके आप लोगों को आज पता है, उस टाइम पे तो जेके था ही नहीं, है ना, उसको कोई जानता ही नहीं था। मुझे पता था कि ये सारे एक्टर एक लेवल पे पहुंच जाएंगे आगे जाके, तो क्यों ना इन्हीं के ऊपर फोकस किया जाए। क्योंकि आज देखो कई लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आपने सलमान खान के लिए काम किया, आपने अक्षय कुमार के लिए काम किया, शाहरुख खान के लिए काम किया। भाई वो लोग इंडस्ट्री में 30-30, 40-40 साल से है, तो वो क्यों किसी नए पर्सन को काम देंगे? समझ में आया ना आपको? तो जब वो लोगों ने इनिशियली स्टार्ट किया था, तो उनके साथ वो जो स्टार्टिंग में जुड़ा होगा, तो उसी बंदे को तो वो आगे लेके जाएंगे। तो मैं ये चीज समझ चुका था कि कोई नए बंदे को कोई नया बंदा काम नहीं देगा, राइट। तो यहां से मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना जो भी नए लोग हैं उनके साथ कनेक्ट किया जाए, उनको प्रोजेक्ट करके दिया जाए, राइट। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर जो भी आपने देखा है केजीएफ चैप्टर 2, सबको क्यूरियोसिटी रहती है कि वो प्रोजेक्ट मेरे पास आया कैसे। केजीएफ 1 आ गया था, मैंने देखा, मुझे मजा आ गया। मैंने उस मूवी के डायरेक्टर को 22 से भी ज्यादा ईमेल किए होंगे, और मैं यहां से बैंगलोर गया था उनको मिलने के लिए कि बस ये प्रोजेक्ट मुझे चाहिए। तो उसमें लॉकडाउन में 2020 में एक पोस्टर रिलीज हुआ था। आप मेरी प्रोफाइल में जाके वो भी चेक करना। वो जो मोशन पोस्टर है वो मैंने डिजाइन किया है। उसमें आपको उस मूवी में जिसने एंड्रू का रोल किया है, वो है, गरुड़ा है, इन सबके कमेंट्स दिखेंगे आपको, राइट। क्यों? क्योंकि वो इतना अनएक्सपेक्टेड मेरे पास प्रोजेक्ट था, और वो मैंने सोच के रखा था कि ये मुझे करना ही है, राइट। और जब आप सोच लेते हो ना कि मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, तो वो मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो चीज होती है आपके साथ, राइट। तो यहां से मेरा वो जर्नी स्टार्ट हो गया। फिर तो आप लोग देख ही रहे हो, अभी मैं और जो रेडेमेड के फाउंडर है हसमुख भाई, हम लोग जूनागढ़ ही आए थे थोड़े टाइम पहले एक सेशन में ही थे। और ड्यूरिंग द सेशन जैसे हम लोग बाहर निकले, तो मेरे पास एक मैसेज आया, जो तस्करी आपको पता है ना, वेब सीरीज अभी जस्ट रिलीज हुई है, उसके जितने भी ऑफिशियल पोस्टर है मैंने ही डिजाइन किए हैं। उस दिन के सेशन में हमने लिटरली स्क्रीनशॉट शोकेस किया था, जैसे आपके साथ अभी कैसा सेशन चल रहा है। सेशन के 20 मिनट पहले ही हमारे पास एक मैसेज आया था। उन्होंने बोला कि भाई तस्करी रिलीज होने वाली है, जितना भी प्रोजेक्ट का काम है आपको करना पड़ेगा, और आप हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, और आप जो भी है बेसिक प्राइस बता दीजिए, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास तस्करी का प्रोजेक्ट आया। तो यहां तक का ये जो जर्नी है वो मुझे एक्सप्लेन करने का रीजन ये है कि जिससे आप लोग मुझे जान पाओ, मैं आपको जान पाऊं। सेकंड, आप मुझे डिस्क्राइब कर पाओ कि आपके मन के क्वेश्चन क्या है, राइट। इसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे आपको कुछ भी बेसिक क्वेश्चन आप मुझे पूछ सकते हो, बोलिए, मैं आता हूं नीचे आप लोगों के पास, आप मुझे पूछिए जो भी आपको क्वेश्चन हो। आप लोग को समझ तो आई ना जर्नी, आया ना? बताओ, नोबल वाले बड़े धीरे धीरे बोल रहे हैं। चलो, किसी को क्वेश्चन है, हाथ उठाओ। हाँ जी, एक सेकेंड, आप सभी सुनिएगा। आपकी पूरी टीम है या आप अकेले वर्क करते हो? देखिए, मैंने स्टार्टिंग जो है मैंने खुद से ही किया था, मैं अकेला ही काम कर रहा था। अभी राइट नाउ मेरे पास 22 लोगों की टीम है, और मैं चाह रहा हूं मेरे पास और 60-70 लोग भी अगर जुड़ते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मैं आप सभी को समझाना चाहता हूं कि स्किल एक ऐसी चीज है, देखो डिग्री तो आप सब ले लोगे, राइट। डिग्री के बिहाफ में आपको एक पर्टिकुलर ही अमाउंट मिल पाएगा, उसके अलावा आप करोगे क्या? जिसके पास स्किल होती है। आज एक्टर्स लोगों को क्यों इतना हाई पेमेंट मिलता है, आप लोगों ने कभी सोचा है? एक्टर लोग बोलते हैं ना, हमने 200 करोड़ रुपए कमा लिए, या इस फिल्म के मैंने 50 करोड़ रुपए चार्ज किए, वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल है। और आपको पता है, बेसिक जो एक्टर होते हैं ना, बेसिक, ये जो आसिफ खान है जिन्होंने फर्स्ट फिल्म की थी ये पंचायत, मैंने उनको एक दिन पूछा था कि भाई आपने कितना इस पे चार्ज किया था? वो सोचो, उसने बोला मुझे पर डे 50,000 रुपए मिल रहे थे। पर डे 50,000 रुपए किसको कहते हैं? इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ये इंडस्ट्री कितनी वाइड है, और ये इंडस्ट्री कितना बिग पेमेंट करती है। तो जैसे इन्होंने समझाया ना कि आप अकेले काम करते हो कि आपके पास पूरी टीम है, उस टाइम में अकेला कर रहा था। धीरे धीरे मेरा नाम हुआ, तो मेरे पास प्रोजेक्ट्स बल्क में आने लगे। बल्क में आने से क्या है कि मुझे टीम की जरूरत थी। जितने मेरे स्टूडेंट थे जो बहुत ज्यादा अच्छा काम करते थे, ये लोग मुझसे कनेक्टेड हुए। मैंने उन सभी को बोला कि अपन साथ में जुड़ते हैं, जो एजेंसीज है उनके साथ कनेक्टेड हूँ। मतलब तो मेरा यह है कि मैं 3-3 साल के लिए उन्होंने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि मैं पर्टिकुलर फिल्म्स के अलावा कोई काम नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो ना? तो ये होता है। तो लालो का जो प्रोजेक्ट है, आप सोचो अगर आप में से कोई सीखा होता
तो क्यों न कर पाता। और आने वाले वक्त में गुजरात इतना नेक्स्ट लेवल ग्रो हो रहा है इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, सो आप सभी के लिए बहुत बड़े लेवल पे अपॉर्चुनिटीज है। सो इनका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। डन है? हाँ जी। किस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं? देखो मेरा ना एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है, नूरानी चेहरा नाम है उसका। और आप में से किसी को नहीं पता हो तो पंचायत फाइदी आ रही है, तो उसका भी प्रोजेक्ट मेरे ही हाथ में है। और ये ऐसा होता है कि कभी भी आप एक फ्रेंचाइजी फिल्म का काम करते हो ना, उसके बाद आपकी रॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो जितने भी प्रोजेक्ट बनेंगे, कुछ भी इवेंट्स होगा, सब कुछ आप ही को मिलेगा, राइट। सो मेरे एक नूरानी चेहरा है, वेलकम टू द जंगल करके एक फिल्म आ रही है, वो है। और भी 12 जितने मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। और उसमें समटाइम होता क्या है ना, मैं नाम अनाउंस कर देता हूँ और पता लगता है कि वो नाम अगर मतलब कंपनी ने चेंज किया होता है ना, क्योंकि देखो पहले रैम्बो राजकुमार करके मूवी आने वाली थी, फिर उसका आर राजकुमार हो गया, पता है ना, साहिद का था शायद मूवी, राइट। तो ये होता है समटाइम, इसलिए मैं जल्दी नाम डिस्क्लोज नहीं करता, क्योंकि कभी कभी क्या नाम चेंज हो जाता है, फिर आप लोग वेट करोगे कि अच्छा मैं वो नाम बोल के गया तो मूवी नहीं आई, है कि नहीं। सो इस तरीके से। हाँ जी, और बोलिए, किसी को है क्वेश्चन? देखो इनका कॉन्फिडेंस कितना नेक्स्ट लेवल है। वो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं चाहता हूँ लड़कियों की साइड से भी क्वेश्चन होने चाहिए। તમને હાઈએસ્ટ પેમેન્ટ કેટલું મળે? ये होता है गुजराती सवाल। देखो हाईएस्ट पेमेंट मैं, आप तो सब मेरे ही मतलब एक मेरा पास्ट वर्जन हो, मैं आप लोगों को तो मेरे ही जैसे देख रहा हूँ। आप लोगों को नसीब वाले हो के आपको एक डायरेक्शन भी मिल रही है। आपकी इंस्टीट्यूट, हमारे टाइम पे हमारी जो स्कूल है ना, उन्होंने भी इतने एफर्ट्स नहीं लगाए, आपकी तो नोबल इंस्टीट्यूट इतना एफर्ट लगा रही है ना। और सेकंड की जो रेड एंड व्हाइट के फाउंडर है, उनका माइंडसेट पहले से क्लियर था, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा संघर्ष करके आए। वो जब डिस्क्राइब करना आप लोगों को चालू करेंगे ना, उनका जर्नी क्या रहा है, जैसे मेरा बहुत ज्यादा संघर्ष से भरा हुआ जर्नी है, सेम उनका भी है। तो उसमें ये चक्कर है कि उन्होंने बोला था कि मोहित भाई, आपने, मैंने और हम जैसे जितने भी लोगों ने स्ट्रगल करके इतना जो लेट सक्सेस पाया है, तो अभी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको हम इन डेप्थ शेयर करेंगे कि ताकि वो हमारे तरह सर्वाइव ना कर सके, राइट। अब मैं आप लोगों को जो इन्होंने बोला कि देखो स्टार्टिंग का जो मेरा था ना फर्स्ट प्रोजेक्ट, उसका मुझे 20,000 रुपए मतलब प्रोजेक्ट्स के मिले थे। और यहाँ पे ना 45 लाख रुपए तक मैं जा चुका हूँ पोस्टर में। मतलब वो सिंगल पोस्टर नहीं होता, मैं समझाता हूँ। अभी जैसे वेलकम टू द जंगल मूवी आ रही है, उसमें 32 पोस्टर है, 32 पोस्टर मुझे डिजाइन करके देना है। पोस्टर में क्या होता है कि एक होता है कि कमिंग सून वाला पोस्टर होता है, सेकंड होता है कि कैरेक्टर के ऊपर पोस्टर होता है, थर्ड होता है कि अनाउंसमेंट डेट क्लियर होती है, राइट। इस तरीके से मल्टीपल पोस्टर्स होते हैं। फिर फिल्म रिलीज हो जाती है ना, उसके बाद भी क्रेडिट्स वाले पोस्टर्स अलग होता है। तो ये पूरी फिल्म का जो है ना, एक हमें कॉम्बो का एक प्राइस बताना पड़ता है, राइट। तो वो जो है वेलकम टू द जंगल का, वो अब तक का मेरा हाईएस्ट हुआ है 45 लाख रुपीज। सो ये, और पोस्टर बनाते तो ये इंडस्ट्री बहुत वाइड है। आपके मदर फादर सोचो इतना आप लोगों के पीछे माइंडसेट रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग स्टडी मत करो, स्टडी डेफिनेटली करना चाहिए, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि स्टडी के साथ क्यों ना आप ऐसे स्किल सीख लो जो आपके लाइफ को, आपके लाइफ विजन को चेंज कर पाए, है ना। क्योंकि अगर आपने स्टडी भी की है और अगर आपकी स्किल भी मजबूत है, तो सोचो कि जिस दिन आपकी डिग्री काम नहीं लगेगी ना, उस दिन आपको आपकी स्किल जरूर काम लगेगी। बोलिए अभी क्या है और क्वेश्चन? KGF तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो अभी आपका कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट है? ड्रीम प्रोजेक्ट क्या चक्कर है, मैं आप लोगों को टू बी ऑनेस्ट बताता हूँ। देखो कई लोग बोलते हैं कि अरे बॉलीवुड के काम कर रहे हो, नेक्स्ट क्या आपने प्लान करके रखा है। मैं आप लोगों को आज चलो अनाउंसमेंट ही करता हूँ, आने वाले वक्त में ना, ये 1 साल के अंदर अपन हॉलीवुड की किसी एक फिल्म का काम जरूर करेंगे। मेरी मीटिंग्स भी चल रही है और मेरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। नाम मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 5-6 मूवीज है, पता नहीं मुझे किस मूवी का काम मिल जाएगा, राइट है। सो अपन हॉलीवुड का डेफिनेटली काम करेंगे, 1 साल में आप लोगों को पता लगेगा। बोलिए नेक्स्ट। लड़कों ने देखो बहुत सारे सवाल किए हैं, मैं चाह रहा हूं लड़कियां भी सवाल पूछे। हाँ जी, कोई તમને પ્રોજેક્ટ મળે તો એનું પેમેન્ટ એડવાન્સ લ્યો કે પછી? सारे पेमेंट के ही ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो नहीं, अच्छी बात है, देखो ये होना चाहिए। इवन आप लोगों को फियर भी नहीं है मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करने में, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा मुझे। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, बड़े लो फील करते हैं लोग, और चले जाने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते हैं कि अरे सर ये ऐसा ऐसा था, जरा बता दो ना। तो तुम भाई वहां तब कहाँ गए थे, है ना। सो आपका क्या क्वेश्चन है फिर से? हाँ यस, देखो पेमेंट एडवांस वाला मैं आप लोगों को चैप्टर समझाता हूँ।
कभी भी पहले क्या हो रहा था कि पहले ना मुझे काम चाहिए था, तो मेरे साथ ना ऐसे बहुत मुझे उल्लू बनाया गया था स्टार्टिंग के टाइम पे। प्रोजेक्ट दे देते हम कर देते हैं, प्रोजेक्ट रिलीज हो जाता है, हमको पैसे नहीं देते, राइट। सो वो मुझे चीजें समझ में आ गई। सो जैसे ही मैं एक बेस्ट लोगों का काम करने लगा ना, एक लॉबी का, जैसे मनोज बाजपेयी है, पंकज त्रिपाठी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, अनुपम खेर है, तो ये लोगों ने मुझे समझाया कि मोहित ऑलवेज मूवीज को फाइनलाइज करने के पहले उनसे 70% अमाउंट एडवांस ले लो। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग तुम्हारे पास आए तो उनको ये भी तो पता ही है ना कि आप लेवल का काम करके दोगे। तो इस तरीके से होता है, फिर 70% एडवांस लेते हैं और बाकी का फिर बाद में करता हूँ। फोटोशॉप के अलावा मेरा सबसे ज्यादा फोकस है वो है मिड जर्नी एआई पे। मिड जर्नी एआई के ऊपर आप लोग एक बार फोकस करना, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। और जेमिनाई मैं यूज करता हूँ एंड क्लिंग एआई यूज करता हूँ। या जी बोलिए। और डन है। सो प्रैक्टिकल पे शुरुआत करें। सब लड़कों ने क्वेश्चन किया, यहाँ लड़कियों ने एक ने भी क्वेश्चन नहीं किया, बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, इतनी जितनी भी अपन ने जर्नी शेयर की थी। हाँ या ना? आवाज कम आ रही है। चलो मैं आप लोगों को शेयर करता हूं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज। आज तक फोटोशॉप क्या है उनको पता भी नहीं है, जो जानते भी नहीं है, और जो टोटली न्यू है वो सब भी मैं चाहता हूं कि ये जो भी आधे घंटे तक हम डिजाइन करेंगे, उस आधे घंटे की डिजाइनिंग में भी आपने ध्यान दे दिया, और उसके बाद अगर आप लोग घर पे जाकर प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आपको इन फ्यूचर ये चीज बहुत ज्यादा काम आएगी। सभी पोस्टर के सेम फंडामेंटल होते हैं और सेम ही फंडामेंटल का चीजें बहुत होती है, राइट। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। યુટ્યુબ ઓપન કર્યું ને તો अभी आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसमें सबकी डिमांड है कि एक केजीएफ के ऊपर पोस्टर डिजाइन किया जाए, राइट। सो देखो क्या है कि पोस्टर डिजाइनिंग जब भी होती है ना, उसका मेन रूल ऑफ फंडामेंटल क्या होता है कि ट्रेलर्स होते हैं, ट्रेलर में से हम स्क्रीनशॉट्स निकालते हैं, राइट। स्क्रीनशॉट्स निकालने के बाद उसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है। अभी मैं केजीएफ का ट्रेलर ओपन करूं, उसमें से काफी स्क्रीनशॉट्स निकालूं, तो ये फिल्म क्या है ना ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, तो जिससे हमें ये बेनिफिट रहेगा कि उसको हम मल्टीपल वे में मिक्स करके एक पोस्टर डिजाइन कर सकते हैं, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो भी बेस्ट, जैसे कि ये कंपोजिशन है तो ये एक पोस्टर हो गया। सो काइंड ऑफ इसी तरीके से हम मल्टीपल वे में पोस्टर्स मिक्स करके अलाइन करेंगे, राइट। सो जब भी आप गूगल ओपन करोगे ना, एक सेकेंड, जब भी आप गूगल ओपन करोगे तो गूगल में ना कई लोगों को डाउट होता है कि हम पोस्टर तो डाउनलोड करना चाहते हैं या बैकग्राउंड डाउनलोड करना चाहते हैं, पर पता नहीं कि लार्ज वे में डाउनलोड कैसे करना है। तो ऑलवेज एक टूल में जाओगे ना तो यहाँ पे साइज लिखा होता है, राइट। साइज में लार्ज, ये होता है इजी मेथड। अब मुझे ना सबसे पहले ये वाला एक पोस्टर थोड़ा सही लग रहा है और इसको मैं अलाइन कर सकता हूं मेरे थॉट प्रोसेस के साथ, राइट। सो सबसे पहले इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। एक ये हो गया। अब क्या है ना कि जितने भी इस मूवी के कैरेक्टर्स हैं, उस कैरेक्टर को हम लोग ब्लेंड करेंगे, राइट। सो हम क्या काम करेंगे, जैसे कि ये बहुत ज्यादा बेसिक वे में आप लोगों को मैं समझा रहा हूं जिससे आप लोगों को एटलीस्ट कभी प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। सी सो इसका भी एक पोस्टर है। तो हम क्या काम करते हैं कि जितने भी केजीएफ के आउटपुट होंगे ना जो मुझे कन्वीनियंट लगेंगे, मैं उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लूंगा। यहाँ पे कितनी चीजें ध्यान में रखने की होती है वो मैं आप सभी को समझाता हूँ। सबसे पहले तो हाई क्वालिटी में इसको डाउनलोड करते हैं। तो केजीएफ के जितने भी सीन है, सबसे पहले माइंड में रखिएगा कि ये जो ये सीन होता है ना, इसे हमें बैकग्राउंड में दिखाना होता है। ये इन डेप्थ सिखा रहा हूँ, शायद ये पहली इंस्टीट्यूट है जिसमें इतना ज्यादा इन डेप्थ सीखने को मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ट्रेलर के ऊपर ही एक्चुअल पोस्टर्स बनते हैं और मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, राइट। अभी हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट तो हमने ले लिया।
अब ये जितने भी सीन हैं बैक टू बैक हम क्या काम करेंगे कि अब जैसे ये वाला एक कैरेक्टर है, राइट, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। अभी यहाँ पे ये हबल फिल्म्स है ना, सीन, सबसे पहले इसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। चलो, ओके, सो ये वाला कैरेक्टर है ना, इसको हमें दिखाना है कि ये इसकी स्टोरी, क्योंकि देखो पोस्टर इट्स ऑल अबाउट स्टोरी। तुम तुम्हारे पोस्टर में कितनी स्टोरी दिखा सकते हो ना, पोस्टर तो ही रिलेवेंट लगेगा, राइट। तो सबसे पहले इसको इसको एंड इसको यहां से डाउनलोड कर लिया, राइट। ये सारे सीन है, इन सब सीन को ना बैकग्राउंड में दिखाना होता है, राइट। सो जैसे एक ये है, तो इसको भी हम यहां से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जैसे कि ये गरुड़ा का फोटो है, इसको हम यहां से सबसे पहले मैजिक टूल में सेलेक्ट कर रहा हूं, जिससे कि है ना वो सिलेक्शन में आ जाएगा, राइट। ये हो गया इसका बैकग्राउंड। कंट्रोल टी से ना मैं इसको ऐसा एडजस्ट कर सकता हूँ। ऑलवेज पोस्टर का रूल ऑफ थंब होता है कि जो विलन है वो थोड़ा बिग स्केल पे दिखना चाहिए, राइट। अब इतना हुआ। इसके बाद ये जो हमारा रॉकी भाई का कैरेक्टर है, इसको हम कंट्रोल वी, पहले रुको यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ओके। अब इसको मुझे थोड़ा रिमूव करना है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि थोड़ा ना क्विक कर लेते हैं, मेरे को इजी रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है ना, काफी यहाँ पे तो चलो खैर डिसाइडेड था नहीं कि प्रैक्टिकल भी आपको सिखाना है, बट लेट्स सी कर ही लेते हैं। केजीएफ का ये जो है हमें एक लोगो मिल गया, ओके। सेकंड, हाँ, तो ये देखो जितने भी पीएनजी है ना, ये थोड़ा हमें हेल्पफुल रहेंगे, राइट। अब इसको भी जो हमें कटआउट इसका सेट करना है, सो इसका एक ये ढूंढ लेते हैं। अब ये जो मुझे ना ये बहुत सही लग रहा है, तो मैं क्या काम करूंगा कि इसका सिर्फ इतना पोस्टर, इसको हम ना हाईलाइट में रखेंगे, काइंड ऑफ जैसे कि कंट्रोल वी, ओके। इसको हम सबसे पहले तो कर लेते हैं रिमूव, ओके। अब देखो कि दो हमारे पास विलन सेट हो चुके हैं, है ना, और इसको हम यहां से करते हैं थोड़ा सेट। अब ये जो एक्स्ट्रा चीज है इसको हम रिमूव कर देंगे कुछ इस तरह। इसको हम इसके पीछे ट्रैक करते हैं, राइट। सो अभी हमारे पास ना दो विलन है, इनकी चीजें हमारे पास सेट है, राइट। हेयर वगैरह अभी तो हम लास्ट में सेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक लुक बन गया है कि हाँ बेसिक लेवल पे हम इसको ले जाके सेट करके फिर इसको मास्टर लेवल पे सेट करेंगे, ओके। सो एक ये विलन वाला फील सेट हो गया। सेकंड, अभी इतना सेट हुआ। अब ये जो गरुड़ा का जो हेयर है, हेयर का यार इश्यू इसलिए है कि अपना फोटोशॉप पायरेटेड है, तो इसमें तो ओके चलो बेसिक लेवल पे मे बी फिर भी आप समझ जाओगे, कोऑपरेटिव तो हो। हाँ चलो फाइनली इसका भी अपन सेट करते हैं, ओके। सो ये बेसिक लेवल पे इसको चीजों को सेट किया गया। अदरवाइज क्या है ना, हमारे पास अभी मिड जर्नी होता है, हम लोग बहुत नेक्स्ट लेवल पे काफी चीजें ब्लेंड कर देते हैं। एंड एनीवेज जो भी चीजें, मेरा मानना है कि इससे पहले भी जब मूवीज के मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो तब भी यही होता था कि अवेलेबल क्या चीज है, चलो अभी तो एआई अभी आया है ना, तब तो कुछ भी नहीं था, तब इसी तरीके से बनाते थे। तो जो चीज, जो सिचुएशन में जैसा काम मिल गया, आपने कितना आउटपुट दिया है वो मैटर करता है। तो एट दी एंड तो चलो चीजें सही ही है। अब ये जो एंड्रू का कैरेक्टर है, तो एंड्रू का कैरेक्टर है, इसका मैं चाह रहा था, अब अपने पास मिड जर्नी में हम बहुत कुछ कर लेते हैं, बट नो इश्यू। चलो सो इसको हम यहां से सेट रखते हैं। यहां पे ब्लेंड कर रहा हूं मैं सिर्फ इसको, राइट। जैसे केजीएफ जहां लिखा है ना, उसके नीचे बेसिक टाइटल वगैरह आएगा कि मतलब फिल्म के निर्माता कौन है,
और फिल्म में मतलब प्रोडक्शन लेवल पे किसका इन्वॉल्वमेंट है, एक्स वाई जेड, राइट। इसमें बहुत से स्टार कास्ट भी हम ऐड कर सकते थे। अब ये ना फाइनल एक आउटपुट होता है कलर ग्रेडिंग का, राइट। इसमें जस्ट सिंपल मैं येलो ऐड कर रहा हूँ जिससे चीजें थोड़ी सी ब्लेंड हो जाए। डार्कनेस जो केजीएफ का एक्चुअल कलर है तो उसको थोड़ा डार्कनेस में ऐड कर रहा हूँ। एंड ये है वाइब्रेंस, सो वाइब्रेंस केजीएफ में है तो नॉर्मल रखेंगे, राइट। और ये है शैडो डेप्थ ऑफ फील्ड, ओके डन। अभी यहां तक उसका बिफोर आफ्टर इतना बन रहा है, तो ये फाइनल वे में देखो कलर ग्रेडिंग एक ही बार में सेट हो चुका है, राइट। और अब आप सभी के माइंड में होगा कि कोई अगर सर जूम करेगा तो उसको कटआउट दिखेगा, है ना, ये सबके माइंड में होता है। ये बहुत बढ़िया आपको यूएसपी समझा रहा हूँ। कभी भी कोई भी पर्सन आपका पोस्टर जूम आउट या जूम इन करे, उसको आपका कटिंग आपको नहीं पकड़ने देना है। तो ऑलवेज क्या करो, ब्लर में जाओ, स्ट्रेंथ को ना 50 से 100 करो। अब आपको लगेगा कि क्या ब्लेंड हुआ है पोस्टर, सी समझ में आ रहा है ना, कटआउट देखो ब्लेंड हो गया, ओके। क्योंकि कभी भी ना जो आउटर एरिया का जो एजेस होता है ना वो दिखता है। आप मानोगे नहीं, अभी अपने पास चलो अवेलेबिलिटी भी जैसे मोस्टली वेंडर्स क्या काम करते हैं, आने के पहले ना बहुत प्रिपरेशन करके आते हैं, है ना। जो भी मतलब आउटपुट होता है उनके पास अवेलेबल, उन्हीं चीजों में से आउटपुट देते हैं। मैं चाह रहा था कि मैं अगर आप लोगों को कुछ भी सिखा रहा हूं ना तो मैं प्री प्लान करके ना हूं, हम एट द टाइम जो भी अवेलेबल चीज है उसमें से आउटपुट निकाले। अवेलेबल चीजों में से भी हमने ये आउटपुट निकाल लिया है। देखो कितने बॉर्डर्स है ना छुप रहे हैं अब अच्छे से। सो दिस इज द थिंग्स। और ये ऐसा ही होता है, कभी कभी आप जैसे मुंबई में भी जाओगे तो किसी डायरेक्टर ने आपको बोल दिया कि एक बार चलो यहीं बैठ के थोड़ा हमारे कंप्यूटर में दिखा दो क्या कर सकते हो, तो एटलीस्ट क्या है ना, तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल स्किल मजबूत होगा तो वहां पे भी कुछ ना कुछ कर ही पाओगे। अभी देखो बेसिक बनाते 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 पोस्टर कहीं किस लेवल पे पहुंच गया। सो दिस इज द वन। ये एक बेसिक प्रोसेस है, फाइनल पोस्टर नहीं है। तो याद रखिएगा, सेम पोस्टर, सेम मेथड, सेम चीजें फॉलो करने से आप कॉमेडी मूवी का पोस्टर हो, एक्शन मूवी का पोस्टर हो या कोई भी मूवी का पोस्टर हो, सारे पोस्टर बनते ऐसे ही है। समझ में आया ना आप सभी को? बहुत જો કે હું પણ કોઈ મોટિવેશન સ્પીકર નથી, પણ કંઈક તમને રિયાલિટી સાથે કનેક્ટ કરી અને કંઈક બેસ્ટ આપવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. સરે ખૂબ સરસ મજાનું સેશન આપ્યું. થોડી સોફ્ટવેરની અધરવાઇઝ કંઈ પણ એઆઈ ના ટૂલ્સની અવેલેબિલિટી નહીં હોવાના કારણે થોડુંક આપણે ડિસ્ટર્બ થયું, પણ કંઈ નહીં, જે થયું તે બેસ્ટ થયું. એવી રીતે આપણે ચાલી રહ્યા છીએ. ખરેખર આવનારા સમયની અંદર હું હમણાં સર સાથે, તમારા સર સાથે ડિસ્કસ કરતો હતો તો મને એવું કીધું કે બીસીએ ના દરેક વિદ્યાર્થીઓ છે, કોઈને કોઈ એમસીએ ના સ્ટુડન્ટો છે. એઆઈ ને જેટલું માણસ આપે એટલું જ એઆઈ કરી રહ્યું છે. એટલે તમે એવા માણસ બનો, કારણ કે લાસ્ટની અંદર એઆઈ ને મેનેજ કરવા માટે વુમન્સ પાવરની જ મોટી નીડ છે. તો એવા વ્યક્તિ આપણે બનીએ કે એઆઈ ને આપણે મેનેજ કરી શકીએ. તો અત્યારે જે કાંઈ ટેકનોલોજીના સબ્જેક્ટમાં તમે આગળ વધી રહ્યા છો એમની અંદર ખૂબ મોટી નીડ આવનારા સમયની અંદર આવા મેન પાવરની છે. તો જે સબ્જેક્ટ ઉપર આપણે ફ્યુચર બનાવી રહ્યા છે એમની અંદર તમે થોડું ડીપ નોલેજ લો. આ એજની અંદર જ મહેનત કરો. જે અત્યારે કોલેજના એક્ઝામ્પલ તરીકે ટીવાય ની અંદર તમે કામ કરી રહ્યા તો તમે એવા બેઝ ઉપર નોલેજ ડેવલપ કરો જે આપણે ઇન્સ્ટામાં, ફેસબુકમાં, વોટ્સઅપમાં લાર્જેસ્ટ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરી નાખીએ. એ જગ્યા ઉપર કંઈક એવા ટૂલ્સ ઉપર કામ કરો કે જેની અંદર તમારી સફળતા એક સારી ઊંચાઈ ઉપર જઈ શકે. આવનારા સમયની અંદર રેડ એન્ડ વ્હાઇટ ની બેઝિક ડિસ્કસ કરું તો સમગ્ર ગુજરાતની અંદર 29 કેમ્પસ છે. ઇન્દોર, ભોપાલ 2 કેમ્પસ નવા ડેવલપ થઈ રહ્યા છે. એક દિવાળી પહેલા હું યુકે હતો. જો સ્કિલની કેટલી નીડ હોય ને એનું તમને બેઝિક ખાલી એક્ઝામ્પલ આપું. દિવાળી પહેલા હું યુકે હતો. યુકે રેડ એન્ડ વ્હાઇટ નું એક કેમ્પસ અમે સ્ટાર્ટ કર્યું લંડનમાં, કિંગ્સબરી હાઉસની અંદર. તો ત્યાં એપ્રોક્સ 80 થી 85 જેવા સ્ટુડન્ટને હું મળ્યો. જો ખરેખર સ્કિલની નીડ કેટલી એમનું ખાલી એનાલિસિસ તમને આપી રહ્યો છે. માણસે કંઈક ને કંઈક ક્ષમતા, ભગવાને જોવા જઈએ તો કંઈક ને કંઈક ક્ષમતા સાથે પૃથ્વી ઉપર માણસને મોકલેલો છે. માણસ એવું જ એક સામાજિક પ્રાણી છે કે જેને ભગવાને સરસ મજાની બુદ્ધિ આપી છે, જેમની અંદર ખૂબ બુદ્ધિશાળી લોકો મારી સામે બેઠેલા છે, જે હું સમજી શકું છું. તો આ बुद्धि અને આ મગજ, જનરલી મારી પાસે સેલફોન હોય, તમારી પાસે સેલફોન હોય તો હું તમારી સામે એક્સપ્લેન કરું કે મારી પાસે 512 GB નો સેલફોન છે. આમાંથી કોઈ બેન એવું કે મારી પાસે 1 TB નો, કોઈ ભાઈ એવું કે 2 TB નો. તમને ખ્યાલ છે મગજ કેટલા TB નો?
તમને બધાને 100% માઇન્ડ આપેલું છે. જોજો બહુ મસ્ત સર્વે આપેલો છે. પછી હું તમને યુકે ની થોડીક સ્ટોરી ઉપર લઈ જાઉં. તમને 100% ભગવાને માઇન્ડ આપેલું, 100% મગજ આપેલું છે. એમાંથી કેટલા ટકા યુઝ કરો? 5%, 10%, 15%, કેટલા ટકા? પેલા તો એ કન્ફર્મ કરીએ. મગજ આપ્યું છે કન્ફર્મ? મગજ આપેલું છે તો કન્ફર્મ ને? કારણ કે નહીં તો વાત કરવાનો કોઈ મતલબ ન રહે, સમજી લો હોય જ નહીં તો. એટલે ચાલો, તો ખ્યાલ છે તમને કેટલા પર્સન્ટેજ આપણે યુઝ કરીએ? પાછળ કોઈ? તમે બધા કોમ્પ્યુટર ફિલ્ડના સ્ટુડન્ટ હો, ઓકે? બીસીએ ના. હું એક પ્રશ્ન પૂછું છું, સીએ નું ફૂલ ફોર્મ શું થાય? તમારો સબ્જેક્ટ છે જ નહીં, છે તો પણ તમને ખ્યાલ છે સીએ નું ફૂલ ફોર્મ ખ્યાલ છે? હવે હું તમને પ્રશ્ન એવો પૂછું, કોમ્પ્યુટર નું ફૂલ ફોર્મ શું થાય? સાલા ફસાઈ ગયા ને? જોજો એ ફિલ્ડના છો તમે. જોજો યુપીએસસી જીપીએસસી માં પૂછાયેલો પ્રશ્ન છે, ગૂગલમાં પૂછેલો પ્રશ્ન છે, ઇન્ફોસિસના ઇન્ટરવ્યુમાં પૂછેલો પ્રશ્ન છે, ફેસબુકના ઇન્ટરવ્યુમાં પૂછેલો પ્રશ્ન છે. કોઈ પણ સ્ટુડન્ટ કંપનીમાં, એમએનસી કંપનીમાં ઇન્ટરવ્યુ દેવા માટે જાય ને તો 70% સ્ટુડન્ટ બેઝિક પ્રશ્નમાં ફેલ થઈ જાય. એટલા માટે તમને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. COMPUTERU એક શોર્ટ નેમ છે, ફૂલ નેમ નથી. યાદ રાખજો કે તમે ફિલ્ડના સ્ટુડન્ટ છો. ચાલો બીસીએ પૂરું કરીને, માસ્ટર પૂરું કરીને કંપનીમાં જોબ માટે જઈએ, બેઝિક પ્રશ્ન પૂછે, ચાલો ખબર નહીં હોય. કોમ્પ્યુટર નું ફૂલ ફોર્મ ખ્યાલ છે કોઈને? કોમન ઓપરેટિંગ મશીન પર્ટિક્યુલર યુઝેડ ફોર ટ્રેડ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ. આવું ફૂલ ફોર્મ થઈ, યાદ રાખજો યાર. આ સ્કિલની તમને નીડ છે. તમે ફિલ્ડના સ્ટુડન્ટ છો યાર. તમે કોઈ યાર માસ્ટર પૂરું કરીને એમએનસી કંપનીમાં જાઓ, તમને બેઝિક પૂછે ને તમે યાર વિચારો કે યાર વોટ ઇઝ ધીસ કોમ્પ્યુટર? સમજાણું તમને? જે રીતે એઆઈ નું ફૂલ ફોર્મ આપણે પૂછીએ, એ એટલે શું? એટલે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. અરે પણ એ શું એમ એ પૂછીએ, ફૂલ ફોર્મ ક્યાં પૂછ્યું જ છે? તો વાત હતી મગજની. તો એમની અંદર 100% ગોળે તમને ભગવાને મગજ આપેલું છે. તો એ 1 લાખ કરોડ ટીબી નું સ્ટોરેજ આપણા મગજની અંદર કરી શકીએ ને એટલી ક્ષમતા છે. જેની અંદર આપણે ફોનમાં સ્ટોરેજ સુવિધા કરીએ, હું આમાં રાખું તો સામે આવશે યાદ આવે. અરે યાર આટલું સરસ મગજ આપ્યું છે, એમાં સ્ટોરેજ કરો ને. એની મોટી નીડ છે. ટૂંકમાં હું આગળની સ્ટોરીને થોડીક કનેક્ટ કરી અને મારી વાતને પૂરી કરીશ. યુકે ની અંદર જનરલી હું 80 થી 85 સ્ટુડન્ટને હું મળ્યો. જોજો યાદ રાખજો, ખરેખર સ્કિલની કેટલી મોટી નીડ છે આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાં પણ. એમાંની 5 સ્ટુડન્ટ એવા હતા જે પ્યોર સ્કિલ ઉપર કામ કરતા હોય. જોજો બાકીના સ્ટુડન્ટ લગભગ 80 જેવા એવા, કોઈ વેરહાઉસમાં હોય, કોઈ મોલમાં હોય, કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં હોય, કોઈ ડિલિવરી બોયમાં હોય. આ રીતે બધા સ્ટુડન્ટો જોબ કરતા હોય. તમે તમારા ગ્રુપમાં એનાલિસિસ કરજો, લગભગ આ જ જોબ હશે આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાં. અને આઉટ ઓફ કન્ટ્રીની એક સિસ્ટમ તમને આપું કે આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાં કોઈ પણ વિદ્યાર્થી ભણવા માટે જાય એટલે અહીંયા જોબ એ કરે ને સાથે કોલેજ એ કરે. લગભગ આપણે ટીવાય પૂરું થયું એટલે જોબ સર્ચ નહીં કરી હોય, કરીશ? આ મોટો પ્રશ્ન. આપણે કોલેજ કરતા એટલે સર આ લોકોના પેરેન્ટ્સ જ એટલા એને સાચવતા હોય, જોજો યાર બીસીએ કરે છે, આને અત્યારે કઈ નો કામ ચીંધવું. અને આપણને જ ખબર હોય કે આપણે બીસીએમ શું કરતા હોય. તો સમજાણું તમને? એટલે કહેવાનો ઇન્ટેન્સ એવો છે કે ખરેખર લર્નિંગ અને અર્નિંગ સાથે હોવું જોઈએ તો જ તમારી સક્સેસ સ્ટોરી બને. સમજાણું તમને? એમાંનું હું તમને યુકે નું એક્ઝામ્પલ આપતો હતો. 5 સ્ટુડન્ટ એવા પ્યોર સ્કિલ ઉપર કામ કરતા હતા. એમાંનો મારો એક સ્ટુડન્ટ છે કરડ ચિંતન, જેને ફોટોગ્રાફીનું સર એક્ઝામ્પલ આપ્યું, કોરલ ફોટોશોપ ઇલુસ્ટ્રેટર. એટલે કે આ સબ્જેક્ટ ઉપર શીખેલો વિદ્યાર્થી, એને એડિટિંગમાં ફૂલ ઇન્ટરેસ્ટ. એ અહીંથી યુકે ગયો, ત્યાં 5 કરોડ થી લઈને 1500 કરોડ સુધીના બંગલોસ હોય ને, એના ફોટોગ્રાફી કરીને બંગલો સેલ કરવાના હોય ને, એટલે એડિટ કરવાના હોય. ફોટોગ્રાફી કરી એડિટિંગ કરીને એને સેલ કરવાના. 1,25,000 પાઉન્ડ એમનો સેલેરી. ઇન્ડિયાનું પેકેજ તમે જોવો એટલે 1.5 કરોડનું પેકેજ થયું. એમાંની એક આરતી કરીને સ્ટુડન્ટ છે, રેડ એન્ડ વ્હાઇટ ની સ્ટુડન્ટ છે. તમારી યુનિવર્સિટીનો લોગો છે, ઇન કેસ અહીંયા લખેલું સ્નોબલ, એ જ રીતે તમારા આઈ કાર્ડમાં હોય, બધી જગ્યા ઉપર લોગો હોય. ઓનલી લોગો કંપનીના ડિઝાઇન કરી રહીશ. ઈ ગર્લ્સ દરેક કંપનીના લોગો ડિઝાઇન કરવાના, બરાબર? એ કંપનીના લોગો ડિઝાઇન કરે છે. જેની સ્કિલ ખરેખર લોગો ડિઝાઇનિંગ માટે જે સ્ટુડન્ટ બનેલી, કારણ કે એને પહેલેથી એ સબ્જેક્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ હતો. તો એ સ્ટુડન્ટ અત્યારે એવી રીતે જોબ કરી રહી છે કે લોગો ડિઝાઇનિંગના બેઝ ઉપર એમનો 1.5 લાખ પાઉન્ડનો સેલરી. ઇન્ડિયન કરન્સી કાઉન્ટ કરો એટલે 1.25 કરોડ રૂપિયા સેલરી થઈ. સેકન્ડ વસ્તુ વાત કરું કે તમને ખ્યાલ હશે કે વિરાટ કોહલી પરમનન્ટ યુકે ટ્રાન્સફર થઈ ગયો.
એમની જે કઈ પ્રોપર્ટીઝ મુંબઈની અંદર હતી એમના ભાઈને ટ્રાન્સફર કરી 2500 કરોડ જેવી, અને અત્યારે યુકે ટ્રાન્સફર થયો. હું કરણ ચિંતનની વાઇફની વાત કરું છું. એને 3 વર્ષ કુકિંગનો કોર્સ કરેલો, અને એ જો કોઈ પણ સ્કિલની વાત કરી રહ્યો છું તો એ કુકિંગના બેઝ ઉપર એ સ્ટુડન્ટ વર્ક કરતી. વિરાટ કોહલીના ઘરે 24 વર્ષની ગર્લ છે, કરણ ચિંતનની વાઇફ. વિરાટ કોહલીના ઘરે મોર્નિંગમાં ખાલી બ્રેકફાસ્ટ બનાવવા માટે જાય છે. સવારે 7 વાગ્યાથી 11 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમિંગ. રોજનો 1500 પાઉન્ડનો સેલેરી છે. મંથલી 45,000 પાઉન્ડ સેલેરી થયો. એટલે વિચાર કરો, ઇન્ડિયાનું પેકેજ મંથલી 60 લાખ રૂપિયા સેલેરી થયો. સ્કિલ, આને સ્કિલ કહેવાય. સમજાણું તમને? તો કહેવાનો ઇન્ટેન્સ મારો એવો છે કે કોઈ પણ સ્કિલ ઉપર આગળ વધો. તમે જે ફિલ્ડમાં કામ કરી રહ્યા છો એ ફિલ્ડની અંદર બહુ મોટી સ્કિલની નીડ છે. ચાલો, ઓકે. તો આવનારા સમયની અંદર તમે લોકો જે કઈ એઆઈ ટેકનોલોજી કેટલી ફાસ્ટ છે, એમાંની 2 ટેકનોલોજીની ખાલી વાત કરું. એઆઈ ની અંદર અત્યાર સુધીમાં જે થિંક કરી રહ્યા તમે વિચારો છો ને, એનાથી એઆઈ ટેકનોલોજી બહુ આગળ છે. ખાલી એઆઈ સાંભળવાથી એ ટેકનોલોજીમાં ઘૂસી નથી જતા, એટલું યાદ રાખજો. એના માટે મહેનત કરવી પડે તો સક્સેસ સ્ટોરી બને. તો એઆઈ ની સિમ્પલ તમને વાત કરું. એમેઝોન એવા ડસ્ટબિન ડેવલપ કરી રહી છે કે તમને ઘરની અંદર એક ડસ્ટબિન આપશે એમેઝોન, અને તમે કોઈ પણ પ્રકારની ઘરે વસ્તુ પ્રોડક્ટ ખતમ થાય એનો કાગળ આપણે કેમાં નાખીએ? ડસ્ટબિનમાં. સમજી લો, કુકીઝ ખતમ થઈ તો કાગળ ડસ્ટબિનમાં, બ્રેડ ખતમ થઈ તો કાગળ ડસ્ટબિનમાં, કોઈ પણ વસ્તુ ખતમ થાય એનો કાગળ આપણે ડસ્ટબિનમાં નાખીએ. ડસ્ટબિન ક્યુઆર વાળો હશે, અને કાગળ ઉપર જો ક્યુઆર કોડ હોય. જેટલા કાગળ અંદર નાખો ને ડસ્ટબિન બધા સ્કેન કરશે. એમેઝોન ને ખ્યાલ આવશે તમારી ઘરે 10 પ્રકારની પ્રોડક્ટ ખતમ થઈ છે, એમેઝોન તમારા ઘર સુધી પહોંચાડશે, તમને કહેશે આ ઘરે પ્રોડક્ટ નથી, ખરીદો. ધીસ ઇઝ ટેકનોલોજી. સમજાણું? અત્યારે મેઇન કોઈ પાર્ટ સાથે ડીલ કરવી હોય, કોઈ સાથે બિઝનેસ કરવો હોય, તો એમની મેઇન વસ્તુ શું હોય? કોમ્યુનિકેશન. સમજી લો, હું ગુજરાતીમાં બોલું તમને સમજાય, હું ઇંગ્લિશમાં બોલું તમને સમજાય, હું ચાઇનામાં બોલું તમને સમજાય? નો સમજાય, મને નો સમજાય. સમજાણું? તો એપલ એક એવું ટૂલ્સ ડેવલપ કરે છે. જોજો, અહીંયા કાન ઉપર માઇક્રો ટૂલ્સ લાગી જશે. સામેના વ્યક્તિને આપણે લોકોને માઇક્રો ટૂલ્સ લાગી જાય. તો એ 232 લેંગ્વેજમાં ટૂલ્સ નેક્સ્ટ યર સુધીમાં 99% ટૂલ્સ ડેવલપ થઈ જશે. કોઈ બી કન્ટ્રીમાં તમે જાઓ, ચાઇના ગયા, તમે ગુજરાતીમાં બોલો એને ચાઇનામાં સમજાશે, એ ચાઇનામાં બોલે તમને ગુજરાતીમાં સમજાશે. બિઝનેસ કરવો કેટલો સરળ થઈ જશે, કારણ કે બિઝનેસનો કોઈ પણ મેઇન પાર્ટ હોય ને તો એ કોમ્યુનિકેશન પાર્ટ છે. તો એટલું સરળ થઈ જશે કે જેની અંદર તમે સારામાં સારી રીતે ડેવલપ થઈ શકશો. છૂટી ગયા છે કોલેજેથી, અને એરિઝોના જોબ ને આ બંને અમારા મિત્ર મળી કેટલો ટાઈમ થયો? કેટલા દિવસ અમે કોલેજ મહિના થઈ ગયા. અને અમારા બોડીગાર્ડ ભાઈ પર્સનલ છે એવું છે. અને ઓમ પટેલ વ્યોમ, ઓમ નહીં, સોરી, વ્યોમ ભાઈ. થોડી સી બડે છોટી મોટી બાतें ચલતી રહેતી. કેવું ચાલે? મસ્ત ચાલે. બસ જો ને આવી રીતના બેહાડી રાખી એક્સ્ટ્રા ટાઈમ. હા, અને હું તો કાલે આવ્યો ને તો મને સીધી સરપ્રાઈઝ મળી કે ટેસ્ટ આજેથી જ ચાલુ થાય છે. હા, ઈ થોડુંક હતું હમણાં દરરોજ હવે. દરરોજ ચાલુ થાય છે. દીધા કરવાની ટેસ્ટ. કોરું પેપર દીધા રાખી, બીજું શું કર્યું? કોરું પેપર તો લખે નહીં કઈ, કોરું પેપર દેવું ડીડી સેટમાં. કેમાં? ડીડી સેટ માર્ક્સ આપે છે, અમને નહીં આપતા. અમને નહીં આપતા. એવું છે? હું ફેલ થયો ના, કઈ દીધું તું તને 32 આવ્યા. એવું નથી. જો આમાં ઓમ 30 માંથી 32 આવ્યા. આ કેવી છે? એક્ઝામ નથી, આ કેવું છે? ચોરી કરતા શીખવાડે છે. આમ કેવું બધા બેસાડે પછી એમ કે તમે ચોરી કરીને લખો. એવું અમને કીધું તું ક્લાસ, કીધું તું ને, પ્રેક્ટિસ કરાવડાવે છે ચોરી કરવાની. બધા એકબીજાનો જોઈને જ લખતા હોય. આઈ નહીં, સારું, ચાલો હાલો, બાય, મળીએ. હા, શું? કઈ નહીં. કઈ નહીં. કઈ કેવા માંગતા હોય તો જનતાને? जनता बस जीवो। देखे अभी दोपहर के बजे है 5 और मम्मी और पापा दोनों देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो मम्मी? ये सब मम्मी और पापा तुवेर भरने के लिए पटारा है ना, वो हमारा खजाना है ओपन किया है, उसमें से कोथरिया फाइंड करने का काम अभी कर रहे हैं दोनों के दोनों, क्योंकि कल तुवेर में शायद क्या मम्मी तुवेर में क्या चलता है?
થ્રેસર આવવાનું છે. ધાણામાં થ્રેસર, તુવેરમાં થ્રેસર. બધામાં થ્રેસર, ઘઉંમાં, ધાણામાં, તુવેરમાં, તલીમાં હાલવા મીંડા. ठीक है ऐसा है. કાલ નહીં પરમથી હાલ. ओके. तो पापा कोथरिया है, गोत रहे हैं, क्योंकि तुवेर भर વીખો છે પટારો જો. पटारो, ये तो कब बोल रही हो कि खजाना. દાદીમાનો પટારો વીખો. હા વીખો છે, ખજાનામાંથી કોથરીઓ પણ નીકળી. હજી તેમાં તરફાર ને એવું કેટલું બધું, આ તો આટલી કોથરી કાઢી છે ખાલી. આ બધી કોથળીઓ છે. હા આ દાણાની ભૈરી હજી આની ઈ તો કોથરા નો ભૈરા મમ્મી, કોથરીઓ ભૈરી. કોથળીઓ જ ભૈરી. હવે કોથરા ગયા. કોથરા ગયા. કોથરો કેટલા ને 100 રૂપિયા ને કોથરો ખેડૂત મોંઘો પડે. અને આ કોથરી આવે 25 રૂપિયાની. 25 રૂપિયાની કોથરી આવે. તો આ બધી ઘઉંની પેલા ભરાણી હોય, પછી ઘઉંની ખાલી કરીને પછી મમ્મીએ પાછી ઘઉંની ભૈરી. હા કેટેગરી વાઇઝ બધી અલગ અલગ રાખી હોય. અમુક ખાજી હોય, અમુક નવી હોય, અમુક જૂની હોય. માનવીની મોટી હોય, ઘઉંની ને તલીની ને નાની હોય, તુવેરની ને હોય. એટલે મમ્મી હવે બધું ગોતે છે, ફાઇન કરે છે. પરમથી થ્રેસર આપણે આવવાનું છે ધાણાની અંદર, એટલા માટે. અને कृतिका, तेज, हेतश्री और झाकी, देखो चारों के चारों है ना, और ट्यूशन में से आकर यहाँ पर मेरे पास ट्यूशन लेने के लिए आए हैं. अपना होमवर्क है वो कर रहे हैं तीनों के तीनों. और यहाँ पर हमारे देखो तेज भाई क्या कर रहे हो? होमवर्क कर रहे हैं. देखिए क्या कर रहे हो. जो 4 हो तो 4 का स्पेलिंग, 3 हो तो 3 का स्पेलिंग ऐसे लिख रहा है. क्या है वो? है ऐसे ही होता है. जैसा ही होता है. तेज मेरा होमवर्क देखो कर रहा है यहाँ पर. और ये क्या कर रहे हो? साइंस का होमवर्क है. वो इतनी बड़ी तो बुक है, दिखाना तो जरा. देखो हम भी पढ़ते थे तो इतनी बुक आती थी. और यहाँ पर तुम किसका होमवर्क कर रही हो? साइंस का. और आप? गुजराती. ये गुजराती मीडियम है, इसलिए गुजराती. ये दोनों इंग्लिश मीडियम में है, और तेज भी इंग्लिश मीडियम में. ये सब चल रहा है. मैंने नया स्टार्ट किया है. कॉलेज से आकर इनका ट्यूशन लेने का. नहीं इस मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ होमवर्क करने के लिए आए हैं.